بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فتحنا لک فتح مبین مل کر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں اللہم صلی علی محمد دعائے خداوند متعال حجاب کبریا فاتح شام ملکہ ملک بقا بانی رسم ازا شہزادی کے تذکرے کو وارث زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الہی آمین۔ میرے مالک اس ذکر کے صدقے سے آج کی اس مجلس کو سننے والے سامعین، دیکھنے والے ناظرین اور بالخصوص برادر ذی وقار جناب انتصار شاہ صاحب اور اس چینل ولایت علی کے تمام جتنے بھی متعلقین ہیں ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے الہی آمین۔ تذکرہ ہے اس مخدومہ عالمیان کا، گفتگو ہے اس پاک گھر کی پاک شہزادی پہ، جس شہزادی کے لیے میں سب سے پہلے ایک لقب کا سہارا لوں گا جو عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی کہ یہ وہ باعزت شہزادی ہے کہ یہ عالمہ بھی ہے لیکن بغیر کسی سے تعلیم لیے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اس شہزادی کے بارے میں یہ لفظ اس آقازادی کے القابات میں بھی لیا جاتا ہے اور عقیدے میں بھی لیا جاتا ہے، لیکن یقیناً اس لفظ کی گہرائی یہاں پر ہم سے یہ بات ثابت کروا رہی ہے کہ جب مخدوم عالمیان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم یہ بات کریں گے کہ اس بی بی کو عالمہ غیر معلمہ کہا جاتا ہے، تو یہ لفظ کہنے کے انداز میں اور عقیدے کے لحاظ سے تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو پھر تفصیل میں جا کے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس گھر کی بیٹی ہے، یعنی کہ خالق نہج البلاغہ کی بیٹی ہے لیکن غیر معلمہ ہے، یعنی کہ جو تعلیم لینے کے لیے علی جیسے امام کے ہوتے ہوئے بھی عالمہ غیر معلمہ کہلوائے، اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، بے شک۔ جس گھر میں سارے ہی پڑھے لکھے ہوں اور اس گھر میں کوئی کہے کہ میں کسی سے نہیں پڑھا تو یہ بات انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں کسی سے نہیں پڑھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، پڑھے لکھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ مجھے کسی نے نہیں پڑھایا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جس گھر میں مصطفیٰ جیسے نبی ہوں، جس گھر میں امیر المومنین جیسا صاحب منبر سلونی ہو، جس گھر میں سیدت النساء ہو، جس گھر میں حسن جیسا لوح محفوظ کا قاری ہو، جس گھر میں حسین جیسا نوک نیزہ کا قاری ہو، اس اتنے پڑھے لکھے گھر میں کوئی اپنے آپ کو عالمہ غیر معلمہ منوائے تو اس بی بی کی عزت ہے۔ کیا بات ہے، جیو قبلہ، بے شک۔ یہ وہ فاتح شام شہزادی ہے کہ اگر یہ گفتگو کی ہے، اس نے یہ بولی ہے تو امیر المومنین کے لہجے میں بولی ہے۔ جناب فاتح شام کا لہجہ اگر مورخ نے لکھا یا کسی نے سنا تو کوئی آج تک نہیں کہہ سکا کہ بی بی کا لہجہ علی سے جدا تھا۔ ہر ایک نے لکھا کہ کوفہ میں بولی تو علی کے لہجے میں، شام میں بولی تو علی کے لہجے میں۔ اس کا مطلب ہے کہ لہجہ امیر المومنین کی مالکن تھی جناب سیدہ، تو پھر مجھے یہاں جملہ کہنے دیجئے گا، علی کا لہجہ
دو ہی ہستیوں نے لیا ہے، یا معراج میں توحید نے لیا تھا، یا شام میں علی کی بیٹی زینب نے لیا ہے۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، نعرہ حیدری، دو ہستیاں مجھے محمد محمد، دو ہستیاں مجھے لہجہ علی کی مالک نظر آئیں، یا عرش بری پہ معراج میں توحید، یا پھر شام کے بازار میں یہ پاک شہزادی۔ بابے کے لہجے میں بولی۔ جب شہزادی کا ظہور دنیا میں ہوا، جب شہزادی کا ظہور مبارک ہوا، تو نام رکھا گیا زینب، باپ کی بھی زینت۔ زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، جیسے کہتے ہیں کہ اعمال کی زینت نماز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی بھی اعمال ہیں، لیکن خوبصورتی نماز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، ہر گھر کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، لیکن اس شہزادی کا اسم اتنا مبارک ہے، اس شہزادی کا اسم مبارک کتنا کمال ہے کہ یہ باپ کی زینت ہے، کیونکہ ماں جو تھی وہ باپ کی ماں تھی، ابیہ تھی۔ یہ شہزادی باپ کی زینت بن کے آ گئی۔ اس شہزادی نے اپنے آپ کو باپ کی زینت بن کے ایسے منوایا کہ آئیے دیکھیے کہ خداوند متعال کا دین جو ہے اس کو معراج کیسے ملی ہے۔ خداوند متعال کے دین کو پہلے دن معراج نہیں ملی۔ حضرت آدم نے زمین پہ آ کے انسانیت کو رہنا سکھایا، یہ انسانیت کا پہلا زینہ تھا۔ نوح نے نجات کا سفینہ بنایا، یہ انسانیت کے لیے معراج کا دوسرا زینہ تھا۔ حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی، یہ انسانیت کے لیے معراج کا تیسرا زینہ تھا۔ موسیٰ کوہ طور پہ کلام پروردگار میں ہوتے رہے، یہ معراج انسانیت کا اگلا زینہ تھا۔ حضرت عیسیٰ ٹھوکروں سے مردوں کو زندہ کرتے رہے، یہ معراج انسانیت کا اگلا زینہ تھا، لیکن تکمیل معراج نہ ہو سکی تھی۔ پھر فاران کی چوٹیوں میں کسی نے لا الہ الا اللہ کہا، یہ انسانیت کے معراج کا اگلا زینہ تھا۔ کسی نے بیٹی کا احترام بتایا، یہ انسانیت کے معراج کا اس سے اگلا زینہ تھا۔ کسی نے لوگوں کو خدا کے سامنے جھکایا، یہ انسانیت کے معراج کا سفر تھا۔ کسی نے بتوں کو پاش کروایا، یہ انسانیت کے معراج کے سلسلہ تھا۔ کسی نے انسانیت کو جھوٹ کی وادیوں میں سچ بولنا سکھایا، یہ انسان کی بلندی کی منزلیں تھی۔ کسی نے انسان کو اخلاق کے زیور سے آراستہ کروایا، یہ انسانیت کی بلندیاں تھی۔ کسی نے انسان کو علم بخشا، یہ انسان کی ارتقاء کی منزلیں تھی۔ لیکن کہیں بھی معراج انسانیت مکمل نہ ہو سکی، کہیں بھی خدا کے دین کی معراج مکمل نہ ہو سکی، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ منوایا جا چکا، یہاں بھی انسانیت کے معراج کو مکمل نہ ہوا۔ لیکن جب علی ولی اللہ خم غدیر میں پڑھا دیا گیا، تو اب اگر مجھے یہاں کہنے کی اجازت دی جائے کہ حضرت آدم صفی اللہ نہ رہتے، نوح نجی اللہ نہ رہتے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہتے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہتے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتے، یہ تمام انبیاء کسی بھی زینت کو نہ پاتے اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتا۔ محمد رسول اللہ کی بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ مٹ جاتا اگر محمد رسول اللہ نہ ہوتا۔ محمد رسول اللہ مٹا دیا جاتا اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا، اور علی ولی اللہ ختم ہو جاتا اگر شام میں علی کی بیٹی کا خطبہ نہ ہوتا۔ کیا بات ہے جیو قبلہ، نعرہ حیدری۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے یہاں جملہ کہنے کی اجازت دیجئے گا کہ جو انسانیت کا سفر ارتقاء کا اور انسانیت کی بلندیوں کا سفر اور معراج پروردگار جو دین پروردگار کی معراج تھی، وہ آدم سے شروع ہوئی، لیکن علی کی بیٹی کے لہجے نے مکمل کیا۔ بے شک، کیا بات ہے قبلہ۔ کیا پڑھتے ہیں ہم جب ہم 18 ذی الحجہ کرتے ہیں، جب ہم خم غدیر کی بات کرتے ہیں، جب ہم تذکرہ غدیر کا کرتے ہیں، تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ خم غدیر میں خدا نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ وہ دین کامل کس سے ہوا تھا؟ ولایت علی کے اعلان کے ساتھ۔ وہ دین مکمل کیسے ہوا تھا؟ علی ولی اللہ کے ساتھ۔ خدا نے آدم سے شروع ہوئے دین کو جب علی کی ولایت کے غلاف میں بند کر دیا، تو اب دین کے دشمنوں کا، اب کافروں کا،
अब मुनाफिकों का, अब मुनकरों का, अब खुदा की दीन के दुश्मनों का, अब रसूल की रिसालत के दुश्मनों का अब एक ही हरबा था कि हमने अब दीन पर हमला करना है तो हमें अलीउन वलीउल्लाह मिटाना पड़ेगा, हमें अलीउन वलीउल्लाह पे हमला करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा ने इस दीन को अलीउन वलीउल्लाह में महफूज कर लिया है। तो अब दीन इलाही पे हमला करने के लिए लोग अलीउन वलीउल्लाह मिटाना चाहते थे, लोग अलीउन वलीउल्लाह खत्म करना चाहते थे। जब रसूल के जाने के बाद हमला अलीउन वलीउल्लाह पे हुआ तो कभी हसन की कुर्बानी समझ में आ रही थी, कभी हुसैन अलैहिस्सलाम का सफर शुरू हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा हुसैन सफर कर चुके, हम हसन को शहीद कर चुके, हुसैन से एहराम तुड़वा चुके, अब हुसैन को करबला में लेके आएंगे, घेर के अली को, अली के बेटों को वहां शहीद कर दिया जाएगा और अली वलीउल्लाह खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब सर कट रहे थे, जब सर के नेजा पे सवार हो रहे थे, उस वक्त जले हुए खैमों से एक बीबी अली ही के लहजे के साथ जले हुए खैमों से अपनी चादर की धार के साथ, अपने खुतबे की तलवार के साथ कुछ इस अंदाज से निकली कि वो कातल को पिछले कदमों पे चलाती चलाती कातल के घर तक ले आई। ये लोग समझते हैं शायद अली की बेटी को कैद करके शाम लेके आया जा रहा था, लेकिन मैं यहां जुमला कहूंगा, अली की बेटी कैद होकर शाम नहीं जा रही थी, बल्कि कातलों को पिछले कदमों पे शाम छोड़ने के लिए जा रही थी। वो जिन निजस कदमों के साथ करबला की जाना बढ़े थे, वो जिन निजस कदमों के साथ और नापाक इरादों के साथ अली वलीउल्लाह को मिटाने के लिए चले थे, अली की बेटी उनके नापाक इरादों को उन्हीं के उसी शहर में दफन करने के लिए करबला से चली है और शाम तक लेके आई है। और शाम में आके यजीद मलाउन के दरबार में खड़े होके अली की बेटी ने कहा, क्या तू चाहता था कि अली वलीउल्लाह खत्म हो जाए? क्या तू चाहता था मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म हो जाए? तू समझता था तूने अली के बेटे मार दिए, तूने अली के बेटे कत्ल कर दिए तो अब विलायत अली खत्म हो जाएगा? तुझे खबर नहीं है कि खुदा ने ज़ैनब को आज ही के दिन के लिए दुनिया के लिए भेजा था, इसलिए कि जब मुबल्लगाए विलायत अली मौजूद हो तो फिर अली वलीउल्लाह खत्म नहीं हो सकता। और बीबी ने दरबार मलाउन में खड़े होकर कहा, जा अली की बेटी वादा करती है क़यामत तक तेरा नाम लानत के साथ लिया जाएगा, मेरे बाबे का नाम दरूद के साथ लिया जाएगा। क्या बात है, दुश्मनाने आले बैत पर लानत बेशुमार। अल्लाहुम्मा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जियो किबला, क्या बात। ये खुतबे की जुल्फकार थी जो अली की बेटी के हाथ में थी। बेशक खुदावंद मुताल ने फतह मुबीन की आयत की तफसीर बना के अली की बेटी को जमीन पे उतारा था। ये शहजादी सानिया ज़हरा है। इस शहजादी ने क़यामत तक के लिए आने वाली औरतों को एक बेहतरीन उसवे में जो महफूज किया है वो उसवा ज़ैनबिया है। शहजादी ने एक सीरत दे दी है कि अगर आप हक पे हो और मुवक्कफ आपका ठीक हो तो फिर समझने वाला ये समझता है कि शायद आपको कैद किया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत वो खुद कैद हो रहा है। नजरिया मनवाना ये असल फतह है, अपने मौक़िफ़ को कायम रखना ये असल फतह है। बीबी ने करबला के बाद फतह और शिकस्त के म्यार को तब्दील कर दिया। बीबी ने कहा गर्दनें कटने के बाद फतह नहीं होती, बल्कि मौक़िफ़ मनवाने के साथ फतह होती है। शहजादी शान के साथ निकली कि बीबी गई और बीबी ने जाके दरबार मलाउन में खड़े होके शहजादी ने जो खुतबा दिया उसको मैं अपनी अक्सर मजालस में दोहरा चुका हूं, लेकिन आज मुझे अपने 5वें इमाम का वो जुमला पढ़ना है कि मेरे 5वें इमाम सरकार बाक़रुल उलूम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरी दादी, मेरी जद्दा, मेरी आकाज़ादी और बिन्त अली और हुसैन की बहन जब बोल रही थी दरबार मलाउन में खड़े होके, तो बीबी ने ऊंटों के गर्दनों की घंटियों को रोक दिया था। बीबी ने जब उसको कहा था कि खामोश हो जाओ, तो मेरे मौला बाक़रुल उलूम कहते हैं कि बीबी का इतना कहना था कि खामोश हो जाओ, जिस ऊंट का पांव उठा था वो जमीन पर रख ना सका, जिस घोड़े की नाक के नथने से हवा निकली थी वो वापस ले ना सका, जिस सुराख से हवा गुजर रही थी वो वही की वही रुक गई, जिसकी दिल की धड़कन चल रही थी वो वही रुक गई, जिसके खून की लहर जहां थी वहीं पे खून का दायरा नुक्ता बन के कायम हो गया। और मेरे मौला बाक़रुल उलूम ने जो अगला जुमला जिसके लिए मैंने ये बात शुरू की है, मौला फरमाते हैं कि जब पूरे दरबार में यूं खामोशी तारी हो गई और अकेली अली की बेटी बोल रही थी, तो मेरे 5वें इमाम का जुमला है कि हमारी जद्दा ऐसे बोल रही थी जैसे बुतों के झुरमट में काबा बोल रहा होता है। क्या बात है, क्या बात है किबला,
बहुत खूब। चारों तरफ बुत थे और सिर्फ अली की बेटी थी। आहा, मुबल्लगा विलायत अली, आज दो चीजें खतरे में हैं, विलायत अमीर अल मोमिनीन पे हमला और आजादारी हुसैन पे हमला। फतवे अली वलीउल्लाह के खिलाफ, फतवे मातम हुसैन के खिलाफ। जुबानें दराज होती हैं अली वलीउल्लाह पे, जुबानें दराज होती हैं मातम हुसैन पे, लेकिन मैं हर दौर के मुनकर विलायत अली और हर दौर के मुनकर मातम हुसैन से यह कहना चाहता हूं, इन दोनों मकासद की बानी अली की बेटी है। आहा, क्या बात। विलायत अली की मुबल्लगा और मुहाफिजा भी अली की बेटी है। बेशक। अज़दारी हुसैन की मुबल्लगा और मुहाफिजा भी अली की बेटी है। बेशक। तो इन दोनों पे ये सोच के हमला करना कि यजीद भी लाखों का लश्कर लेके आया था और अली की बेटी ने उसे गाली बना दिया था। बेशक, क्या बात। दुश्मनाने वाले बात पर लानत बेशुमार। ये सोच के हमला करना अली वलीउल्लाह पे, ये सोच के जुबान दराज करना मातम शबीर के खिलाफ कि ये तुम्हारी जुबान अली वलीउल्लाह के खिलाफ अगर उठ रही है तो सामने मुहाफिजा बन के अली की बेटी खड़ी है। क्या बात है। बेशक। सामने मुबल्लिगा बन के अली की बेटी खड़ी है। क्योंकि आज की शब सदात और गैर सदात तारीखों में, रवायात में इख्तलाफात हैं मेरी शहजादी की शहादत की मुनासिबत से, क्योंकि इस घर की पाक बाइज्जत शहजादियों की शहादतों में इख्तलाफात का वाक़ होना इसलिए भी काबिल तशवीश नहीं है कि ये खुदा के राज हैं और अल्लाह इनकी शहादतों को पोशीदा रखता है। ये वो मेरी शहजादी है जो मदीना से चली तो बतूल थी, मक्का में आई तो जानशीन रसूल बन गई, करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम गरीबा की एक रात अब्बास बनी, फिर 11 मुहर्रम को दोबारा अली बन गई, फिर करबल से चली तो अली थी, कूफा में पहुंची तो अली थी, बाजार शाम में आई तो अली थी, फिर बीबी बाजार शाम से होके मुख्तलिफ मुल्क और शहरों से गुजरती हुई अली की बेटी शाम से रिहा होके दोबारा मदीना पहुंची, मदीना से कैद होके दोबारा शाम पहुंची। 6666 मील सफर करने के बाद शाम की पहाड़ी पे आके अली की बेटी की आवाज आई, मेरे अल्लाह अब जैनब थक गई है, अब लाइला बच चुका है, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह बच चुका है, अब अली वलीउल्लाह महफूज हो चुका है, लेकिन जैनब अब सफरों की आदी नहीं रही। बस वही शाम, वही अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की जागीर जहां मेरी शहजादी आज भी आराम फरमा रही है। कहां से मुसाहिब शुरू किए जाए, कहां से बात शुरू की जाए, कहां से तज़किरा शुरू किया जाए, कहां से लेके आएगी तारीख इंसानियत फातिह शाम जैसी बहन, कहां से लेके आएगी ऐसी अजीम शहजादी जिसने बाप के मिशन और बाप की विलायत को महफूज कर लिया। बस किताबों में यही मिलता है कि ये बीबी जब इमाम हुसैन ने मदीना से रखते सफर बांधा तो ये कह के अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के पास गई कि अब्दुल्ला, हो सकता है कि अगर आप मुझे रोकना चाहें तो मैं अम्र की पाबंदी करूंगी, रुक तो जाऊंगी, लेकिन ये बात याद रखिएगा, भाई जंग करने के लिए नहीं जा रहा, इमाम दीन को बचाने के लिए जा रहा है, और यहां एक बहन का होना जरूरी है। अगर इजाजत ना दी तो ऐसा ना हो कि जहां से हुसैन का घोड़ा जा रहा हो वहीं से आलिया का जनाजा जा रहा हो। अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार कहते हैं, अली की बेटी के आप जानती हैं, जब मेरा अक्द आपके साथ हो रहा था तो एक लम्हे के लिए अमीर अल मोमिनीन ने मेरा हाथ पकड़ा था और घर के कोने में ले जाके मेरे कान पे मुंह रख के कहा था, अब्दुल्ला, ये अली जैसे अमीर की बेटी है, आपके घर जा रही है, बेहतर लिबास दे सको ना दे सको, बेहतर खुराक दे सको या ना दे सको, ये अली की बेटी है, जिंदगी में कभी गिला जुबान पे नहीं लाएगी। लेकिन अब्दुल्ला, एक बात का ख्याल रखना, मैं इसी शर्त पे अपनी बेटी को आपके घर भेज रहा हूं, जब मेरा हुसैन सामान बांधे जैनब को रोकना ना, क्योंकि दीन इलाही को इसकी जरूरत है, दीन इलाही को इसके खुतबों की जरूरत है, मेरी विलायत को इसके खुतबों की जरूरत है। बस सादात और गैर सादात सफर बंद रहे थे, सामान बांधा जा रहा था और अली की बेटी भाई के साथ इस अंदाज से चली कि फिर मदीना से चली तो मक्का पहुंची। लेकिन जब मदीना से निकलने लगी थी तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम
एक मर्तबा बीबी के हुजरे में आए थे और हुजरे में आके कहने लगे, अली की बेटी आप मेरे साथ जा रही हैं, आप शरीकतुल हुसैन हैं, आप इस सफर में मेरे शरीक हैं, लेकिन बीबी मेरे सामने दो मुश्किलें हैं। बीबी देख के कहती है, हुसैन मुझे मुश्किल बताइए। मौला हुसैन देख के कहते हैं, अली की बेटी महाज दो हैं, मैं अकेला हूं, महाज दो हैं, मैं अकेला हूं। एक करबला महाज है, एक शाम महाज है। करबला में रोका जाएगा, शाम में कातिल बैठा है, मुझे बता मैं करबला रुकूं या शाम जाऊं। अगर मैं करबला रुकता हूं तो शाम फतह नहीं होती, अगर मैं शाम जाता हूं तो करबला में क्याम नहीं होता। बीबी देख के कहती है, हुसैन आप घबराए ना, ऐसे कीजिए, आसान महाज खुद रख लीजिए, मुश्किल महाज मुझे दे दीजिए। इतना कहना था, मौला हुसैन की आवाज आई, आप किस महाज पे लड़ेंगी? रो के कहती, हुसैन तुम बेटों को लेकर करबला रुक जाना, शाम जाने अली की बेटी जाने, मैं तब तक शाम से उठूंगी नहीं जब तक शाम की दीवारें ना बोले कि हुसैन नमाजी था, विलायत अली हक पे थी। इतना कहना था, या करीम करबला की आवाज आई। हुसैन मौला की दाढ़ी आंसुओं से भर चुकी थी। मौला हुसैन की आवाज आई, ऐ सैयदा आपने महाज तो कबूल कर लिया, लेकिन मुझे बताइए, मेरे पास फौज एक है, लश्कर एक है, महाज दो हैं, मैं लश्कर को करबला में लड़ाऊं या लश्कर को शाम लेके जाऊं? अगर मैं लश्कर को करबला रोकूं तो शाम आपके साथ कौन जाएगा? अगर लश्कर को शाम आपके साथ भेज दूं तो करबला में मेरे साथ क्याम कौन करेगा? देख के कहती, मैं जन्नत और दोज़ख तकसीम करने वाले बाप की बेटी हूं, अगर आप कहें तो लश्कर को मैं तकसीम कर लेती हूं। आप ऐसे कीजिएगा, अब्बास आप रख लीजिएगा, रुकैया मुझे दे दीजिएगा, असगर आप रख लीजिएगा, सकीना मुझे दे दीजिएगा, कासिम आप रख लीजिएगा, फरवा मुझे दे दीजिएगा। जब बीबी ने ये जुमले कहे, हुसैन रोते जा रहे थे, या एक वक्त ऐसा आया, अली की बेटी की चीख निकली, रो के कहा, एक सजाद मुझे दे दीजिएगा, अगर शाम में आपकी याद आए, मैं आपके बेटे का चेहरा देखूं। मुझे मुहाफिजा इमामत कहा जाता है, मुझे अमीना इमामत कहा जाता है। बस सादात और गैर सादात। तीसरा जुमला क्या सुनना था, या मौला हुसैन की आवाज आई, ज़ैनब आपने तो सारी मंजिलें आसान कर दी, लेकिन एक मुसीबत और है। फरमाया, हुसैन बताइए और मुसीबत कौन सी है? फरमाया, अगला मरहला मेरे लिए ये है, अब्बास को कौन बताएगा कि हम जा रहे हैं? इतना कहना था, बीबी रो के कहती, वो भी मेरी जिम्मेदारी है, अब्बास को दरवाजे पे बुलाया जाए। अबुल फजल अब्बास दरवाजे पे आते हैं, बीबी रो के कहती, अब्बास पहली और आखिरी बार कह रही हूं, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा, जो हुसैन कहता जाए वो करता जा। बस अब्बास की आंखें बंद हो गई। मदीना से काफिला चल पड़ा, मक्का में हराम टूट गए, करबला में ख्याम लग गए, 7 मुहर्रम का पानी बंद हो गया, करबला में मक्तल 10 मुहर्रम का सज गया। जो अकबर की अजान से दिन शुरू हुआ था वो हुसैन के सजदे पे मुकम्मल हो गया। हुसैन लाशें उठाते रहे, अली की बेटी ख्याम में शुक्र करती रही। हुसैन लाशें उठाते रहे, अली की बेटी ख्याम के दरवाजे पे मंजर देखती रही। या एक ऐसा वक्त आया, हुसैन का आखिरी विदा हुआ। जब हुसैन आखिरी विदा करके मक्तल की जानब चल पड़े, फिर अली की बेटी का एक बार मुंह नजफ की तरफ हुआ, रो के कहती है, बाबा अब तेरा आखिरी बेटा भी जा रहा है, लेकिन बाबा गवाह रहना, अभी ज़ैनब जिंदा है, अभी तेरी विलायत खतरे में नहीं है। इधर हुसैन की आवाज आई, हल मिन नासिर यंसुरना। इधर हुसैन का सदा गुर्बत बुलंद हुई, इधर हुसैन का सदा इस्तगासा बुलंद हुआ। या अली की बेटी का सर खाक में था, बीबी ने सर को उठाया, सैयदुल साजिदीन के कांधे को हिला के कहती है, सज्जाद आंखें खोलिए, अब अगले इमाम आप हैं। बस यही मरहला था। बीबी ने सज्जाद की मुहाफजत की, बीबी ने सज्जाद को बचाया, और लश्करों से निकलती हुई अली की बेटी शाम के बाजार में पहुंची। फिर वो मकाम आ गया जहां अली की बेटी को नहीं आना चाहिए था, जहां कोई गयूर मर्द भी नहीं गुजरता था, वो शाम का बाजार था। ये इसी बाजार शाम में उलमा कहा करते हैं कि बाजार शाम के बाद ज़ैनब की शहादत कौन पढ़े, बाजार शाम पढ़ने के बाद ज़ैनब का कत्ल कौन पढ़े, बाजार शाम पढ़ने के बाद ज़ैनब का मुसाइब कौन पढ़े, कि बाजार शाम के बाहर 3 दिन 3 रातें रोका गया। 15 अजानें गुजर चुकी थी। अली की बेटी रो के कहती, अम्मा फिजा इनसे कहे मैं इतनी देर तो खड़े होने की याद ही नहीं हो। या अचानक बाजार शाम का मरकजी दरवाजा खुला, फिर निगाहों ने वो मंजर देखा कि लोगों के हाथों में शराब के जाम थे, शादियाने बज रहे थे, छतों पे औरतें पत्थर लेके खड़ी थी। या अली की बेटी ये निजस माहौल देखा, बीबी ने नौ के नेजा की तरफ सरे हुसैन को देखा, सरे हुसैन पे आंखें बंद हुई, हुसैन के सर से आंसू जारी हुए। बीबी रो कहती, हुसैन तू ना रो, ज़ैनब जो जिंदा है, दीन इलाही की मुहाफिजा तो जिंदा है। बस फिर अली की बेटी ऊंट से ऐसे गुजरी कि मौला सज्जाद शाम में आके कहते हैं, मैंने पहली बार अपनी मां को कोहनियों के बल चलते हुए देखा। बीबी बाजार शाम में चलती हुई कह रही थी, हुसैन कुरान पढ़िए, ज़ैनब अभी जिंदा है।
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا اي منقلب ينقلبون.